Good morning, everyone. The today's our topic is theory of equation. Theory of equation. I have already sent the problem of partial fraction, all types. Now we will start the new topic, that is theory of equation. First of all, what is equation? There are the three terms, as you heard. One is polynomial, second is equation, third is identity. What is the difference between these three terms? The polynomial fx equal to a0 x1 plus a1 xn minus 1 plus a2 xn minus 2 plus and so on plus an. This is the polynomial of x. Here a0 is not equal to 0. The degree of fx is equals to n. Maximum power of the variable, here it is n. So degree of fx is equals to n. Nth degree polynomial. When this polynomial should be equals to 0, so fx is equal to 0, that means a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus an is equal to 0. When this polynomial equal to 0, this is known as a equation. And where a0 is not equal to 0, so degree of equation is n. Degree of equation is n. And it is satisfied by the variable value, that is the variable x. So here this can be written as a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1 plus an is equal to 0. This is the equation of degree n, and this is the equation of degree n in which x is the variable and we are equating, here it is 0. So this is the equation. Now the next term is identity. Identity, as you heard about, cos square theta plus sin square theta is equal to 1. This is true for every value of theta. True for every value of theta. Whatever you put the value of theta, you will get always the result. The cos square theta plus sin square theta is equals to 1. So this is the identity. Identity is the expression which can be satisfied for every value of the variable, and expression which is satisfied for some value of variable, that is known as a equation, and that is the difference between the equation and identity. आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. आइडेंटिटी जो है, जैसे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा की प्रत्येक वैल्यू के लिए ये सत्यापित होती है. जबकि इक्वेशन अगर हम कहें लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन आप देखोगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 अगर हम इसमें रखते हैं तो 4 माइनस 4 0 इक्वल टू 0 ये कन्वर्ट करती है. दैट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 2 is the solution of equation.
That means it's satisfied for the some value of the variable. That is the difference between the equation and identity. Now our topic is equation. So on the basis of, as I have already told that a0 x to the power n, where a0 is not equal to 0, this is the equation of degree n. On the basis of this degree, we can categorize the equation like linear equation. Linear equation can be written as ax plus b equal to 0. Equation always in the right side equal to 0. So ax plus b equal to 0, this is called linear equation. Why it is called linear equation? The maximum power of the variable is 1, x to the power 1, and the solution of this equation, we will get x equal to minus b by a. By the direct we transfer the value and we will get the result. Second term is quadratic equation. The standard quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0, where the necessary condition is a is not equal to 0, because the maximum power of the variable is 2 and the coefficient of maximum power of the variable, this is not equal to 0. This type of equation is known as a quadratic equation. Now in quadratic equation, there are two types of quadratic equation. One is pure quadratic equation and another one is impure quadratic equation. The pure quadratic equation is like x square minus 4 equal to 0, in which the term x is not appear. And impure quadratic, this is pure quadratic. Impure quadratic equation is x square plus 2x plus 3 equal to 0. What is the difference between these two equations? In the second equation, the term x is there, so we are unable to find the value of x directly. This is the term which is creating the problem to solve or find the value of x direct. That's why it is known as a impure quadratic equation. In pure quadratic equation, we will get the direct result like x equal to plus minus 2. This is the solution in which we can satisfy it in the given equation of curve and we will get the direct result. So this is known as a pure quadratic equation. Next is cubic equation. The standard form of cubic equation, ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0. Here a is not equal to 0. A is the maximum power of the variable x cube. The coefficient of x cube a is not equal to 0. That's why it is known as a cubic equation. The maximum power of the variable is 3. And the next is cubic के बाद आया biquadratic. Biquadratic equation, ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus equal to 0, where the necessary condition is the coefficient of maximum power of the variable x to the power 4, that is a, is not equal to 0. तो इस तरीके से
maximum power of variable, that is known as a degree of equation. It is also known as a degree of equation. How we can define the degree of equation? The degree of equation is defined as the maximum power of the variable which is appear in the equation and the coefficient of that variable which is not equals to 0. So this is degree of equation. So we will see here on the basis of degree of equation we can categorize the equation like linear, quadratic, then biquadratic, cubic and so on. Now let me start from the quadratic equation, general solution of quadratic equation. So here the first term is solution of equation. When the value of variable, when we put this variable value in the given expression, it should be converted to identity like x square minus 4 is equal to 0. So x equal to plus minus 2. x की ये वैल्यू जब हम एक्सप्रेशन में रखते हैं, आप लेफ्ट साइड में रखिए तो प्लस माइनस 2 कोई भी वैल्यू रखें आप, minus 4, this will give 4 minus 4 is equal to 0. That means 0 is equal to 0. इसी को हम आइडेंटिटी कहते हैं. जब लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होता है तो इसको हम 217 उसको देख रहा हूँ आइडेंटिटी कहते हैं. तो यहाँ पर ये 0 बराबर 0 बराबर हो गया, तो दिस इज नोन एज ए आइडेंटिटी. सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू प्लस माइनस 2 is the solution of in the given expression x square minus 4 equal to 0. So how we can define the solution? The value of the variable which satisfied in the given expression, when we put this value in the given expression, it should be converted to identity form. This is known as a solution of equation. Now the standard solution of the curve, how we will find that? This equation can be written as x square plus b by a into x plus c by a is equal to 0. a से हमने इसको डिवाइड कर दिया. अब हम इसको लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं. x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर करिए. इससे पहली टर्म आएगी एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म आएगी 2a इंटू बी, 2x इंटू बी बाई 2a, द सेम टर्म b बाई a इंटू एक्स. एक टर्म इसके परफेक्ट स्क्वायर में और आएगी, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. इसको हम कहें माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0. इससे हमारी एक्सप्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. तो यहां से दिस इज x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0. यहाँ पे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इन दोनों टर्म में हमने मान लीजिए 4a स्क्वायर एलसीएम लिया, तो b स्क्वायर मान लीजिए माइनस लेते हैं, माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. दिस कैन बी रिटन एज x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. इस दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, स्क्वायर को हटाएं, b अपॉन 2a इज इक्वल टू
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू आ गया, ये उधर ट्रांसफर हुआ, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एंड दिस रिजल्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a. This is the solution of the equation, and this type of solution or formula is known as a श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये जो है सॉल्यूशन का धराचार्य फॉर्मूला कहलाता है। इसमें x की दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं, लाइक अब यहाँ देखें हम, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। व्हेन वी कंपेयर विद द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू फॉर्मूला सेज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। दिस इज माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1, c इज 3 अपॉन 2a 2 इंटू 1, दिस इज x। सो x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, ये आ गया हमारे पास 4 माइनस 12 माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 2। तो एक x की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस 2 प्लस माइनस रूट 8 बाई 2, और एक वैल्यू हो गई माइनस 2 माइनस माइनस रूट 8 बाई 2। हमें मालूम है अंडर रूट माइनस 1 बराबर आई होता है स्टैंडर्ड। ये कॉम्प्लेक्स रूट फॉर्म आ रही है, तो माइनस 2 प्लस यहाँ पर इसको 4 इंटू 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2i। देखिए 2 बाहर आया और ये आया 2 रूट 2 अपॉन आई अपॉन 2, और इधर आ गया माइनस 2 माइनस 2 रूट 2 इंटू आई अपॉन 2। तो x की हमारे पास दो वैल्यू जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म में है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स इक्वेशन के कॉन्जुगेट फॉर्म में आते हैं। इसका मतलब अगर कहें एक किसी इक्वेशन का रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 2 प्लस 3i है, तो डेफिनेटली दूसरा रूट 2 माइनस 3i होगा। ये तो खैर भाई हम आपको जब नेचर ऑफ द रूट्स बताएंगे वहाँ आपको पढ़ाएंगे। तो ये जो है हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसके द्वारा हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो हमने रूट्स निकाले हैं, देखिए क्या हुआ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। धराचार्य फॉर्मूला से क्या वैल्यू आई, x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक वैल्यू आई माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। से फर्स्ट इज अल्फ़ा, ये मान लीजिए पहली वैल्यू अल्फ़ा के बराबर है और दूसरी वैल्यू बीटा के बराबर है। अब हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ द रूट्स। पहले तो हम बात करेंगे कि इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी और इसके बाद हम नेचर की बात करेंगे। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, लाइक अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकालना चाहो तो ये आएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों का एलसीएम ले लिया, 2a आया, और इस तरीके से ये टर्म कैंसिल हो गई
और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया माइनस 2b/2a, दैट इज माइनस b/a। और ये b/a क्या था? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, इसको हम कहेंगे सम ऑफ द रूट्स। अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स थे, तो हम क्या कहेंगे? सम ऑफ द रूट्स क्या आया? इज इक्वल्स टू माइनस b/a। एंड व्हाट इज b? b इज कोफिशिएंट ऑफ x। हमें मालूम है, स्टैंडर्ड इक्वेशन देखिए, x का कोफिशिएंट b है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो ये आ रहा माइनस कोफिशिएंट x अपॉन कोफिशिएंट x स्क्वायर। अगर अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें, अल्फ़ा इंटू बीटा, जब प्रोडक्ट करोगे तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। प्रोडक्ट किया तो ये a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। प्रोडक्ट कर दिया तो इससे आ गया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, दैट इज c/a। एंड व्हाट इज c? c इज द कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। दिस इज नोन एज ए प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो अब इसमें हम ये भी बात करें कि अगर मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 2 और 3 हैं, तो इक्वेशन फॉर्म करिए, फॉर्म दी इक्वेशन। अब हम देख सकते हैं जिस इक्वेशन के जितने ही रूट होते हैं उसकी उतनी डिग्री होती है। तो यहाँ भी हमने देखा कि x स्क्वायर प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a इज इक्वल टू 0। और ये किसकी वैल्यू थी? ये थी b/a की माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखें, अब इसमें उल्टा दिया हुआ है, 2 रूट्स दिए हैं और इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो x स्क्वायर माइनस रूट दिए हैं 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, which is the required quadratic equation for the given roots in which x equals to 2 and 3. तो ये हमने on the basis of roots we can form the equation and the roots relation between the roots and the equation, ये हमने यहाँ पर फाइंड किया है। अब आता है नेक्स्ट जो हमने आपको बताया, वो आया नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स में आप देखें, एक हमारे पास टर्म आ रही है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो अंडर रूट में टर्म आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज नोन एज ए डिस्क्रिमिनेंट। दिस डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के आधार पर हम रूट्स को कैटेगराइज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पार्ट 3 केसेस अराइज होते हैं। व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन, इज इक्वल टू,
सॉरी ग्रेटर देन और लेस इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 0। ये तीन केस जो है लेस देन हो, ग्रेटर देन हो या इक्वल हो। फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब धनात्मक संख्या होगी, तो उसके लिए लेट वी एज्यूम दैट द बी स्क्वायर माइनस 4ac इज n स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू। हमने n स्क्वायर क्यों लिया है, लेट मी एक्सप्लेन। सो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस n स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव n स्क्वायर ले ली, क्योंकि हमारे पास पहला केस है वो है व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो। दिस कैन बी रिटन एज माइनस बी प्लस माइनस n अपॉन 2a, n be any value, positive integer value. So we can say that at that case roots are real and distinct. ये बताती है कि एक बार माइनस बी प्लस एन होगा अपॉन 2a और एक बार माइनस बी माइनस एन होगा अपॉन 2a। इसका मतलब रूट्स दोनों ही रियल होंगे और अलग अलग होंगे। तो पहला केस जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, एट दैट केस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। केस 2 व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, एट दैट केस x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a, दैट इज माइनस बी अपॉन 2a। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर x बराबर हमको सिंगल वैल्यू दिखाई देगी और वो दिखाई देगी माइनस बी अपॉन 2a। लेकिन क्या इसकी सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी? नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इक्वेशन की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो डेफिनेटली उसके 2 रूट्स होंगे। तो ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है? हमें सिर्फ एक और एक रूट दिखाई दे रहा है। कारण उसका ये है कि रूट्स आर रियल एंड आइडेंटिकल, इक्वल। ऐसा इसलिए हो रहा है कि दोनों रूट्स बराबर हो रहे हैं, हमें दिखाई एक दे रहा है। जैसे कि अगर हम कहें कि इस केस में मान लीजिए x माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो आप सोल्यूशन क्या लिखते हो? x बराबर 3। ये 3 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि दोनों रूट्स बराबर और इक्वल हैं, बट हैं 2 रूट्स, क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक थी। तो यही वजह है कि यहाँ पर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, उस केस में रूट्स आर रियल एंड इक्वल। केस 3 जो है वो होगा व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव नंबर। उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने माइनस n स्क्वायर लिया, तो x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर अपॉन 2a। लेस देन 0 है इसलिए निगेटिव लगा दिया, इसको समझते चलिएगा। ये बराबर चूंकि हमें मालूम है अंडर रूट माइनस 1 बराबर i, this can be written as minus b plus minus ni upon 2a। ये कॉम्प्लेक्स रूट हो गए, और कॉम्प्लेक्स रूट में अब यहाँ देखें, यहीं पर जो मैं अभी आपको बता रहा था कि कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट फॉर्म में आ रहा है। एक माइनस बी प्लस ni अपॉन 2a और एक आ रहा है माइनस बी माइनस ni अपॉन 2a।
ये कॉन्जुगेट फॉर्म आ रहा है, तो इसमें क्या हुआ, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे एंड कॉन्जुगेट फॉर्म। कब, when b² - 4ac is less than 0।